स्पेशल डे क्योंकि मेरे साथ में एक बहुत मशहूर क्रिकेटर और उनके साथ में एक बहुत मशहूर गायिका और अब बाय द वे वो ये गाते भी हैं और बाय द वे वो बहुत बड़ी फैशनिस्टा भी हैं और इतने सालों से मैं उनको जानता हूँ और कुछ सालों से इनको जानता हूँ लेकिन मेरे को ऑलवेज वो पहली मुलाकात अंकित तिवारी के साथ याद रहेगी। मैं नहीं चाहता आप बताइए वो। जब वो बॉलिंग करने आए थे मुझे नहीं चाहता और सलील भाई बैटिंग कर रहे थे और छक्के लगे उसके बाद सिक्स तो इन्होंने ही मारना शुरू कर दिया। अंकित, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। थैंक यू सो मच। एंड सोनल डार्लिंग, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। Thank you. Always one of the prettiest faces in Bollywood. With makeup, without makeup, it doesn't make a difference. She always looks as hot as ever. But Ankit, multi-talented personality and playing less of cricket these days and hitting the ball out of the park. Before we go into this amazing song of yours, इस गाने के पहले 5 मिनट को देखकर मुझे वो झलक याद आ गई जिसने मुझे 3.5 मिनट का फेम दिया था और उसके बाद मैंने 3.5 साल से उस पर कमाई कर रहा हूँ। सुन रहा है एक कमाल का गाना था। This is very important to tell you. You know, Mohit Suri has always told me this man is a genius. You know, he says that very rarely. But he says this man is a genius who creates things on his own. He created the track Sun Raha Hai, which became super hit, which became more popular than Tum Hi Ho. By the way, if you look at ever the YouTube count, it became the soul and generation of so many people. It launched a production house. It launched careers. But this man now has got his own Sun Raha Hai. I see a bit of that in this as well. But that genius, I feel, is not totally tapped. But even with Ek Villain, till today, Ritesh Deshmukh and we discuss it, it would never have made that kind of money if it was not for your song. Thank you so It made over 100 crores. We never understood how. ये 3-4 साल में जो तेरी जिंदगी बदल गई है यार, from being a great singer, you apart from that, the fact the last 3-4 years has been crazy, यार जिंदगी जो तुम्हारी बदल गई है, हैंडल कैसे कर पा रही हो ये फेम और मनी एंड पीपल और ये सारी चीजें? हाउ यू हैंडलिंग ऑल मनी हैंडल हो जाता है। बट हाँ, टेल मी आई थिंक मतलब हम बहुत ज़्यादा खुशियाँ, अच्छा वक्त और बहुत ज़्यादा बुरा वक्त प्लान नहीं करते, वो कभी भी कैसे भी आ जाता है। तो जब आता है तो वो आप हैंडल भी कर लेते हो, मुझे ऐसा लगता है। और मेरे साथ टचवुड मेरी फैमिली बहुत सपोर्ट करती है। मेरा भाई बाकी सब देखता है, क्रिएटिव जितने भी पार्ट्स वो मैं देखता हूँ, बाकी मेरा भाई देखता रहता है, तो उतनी हेडक नहीं होती है मुझे। सो you know, when he says that creatively, that he does think of it. You know, like I said, there's so many stories of him that I've heard that I will narrate to you eventually. But there's a lady sitting right next to him, and I have to say this. You know, you've always been considered one of the most beautiful faces. I remember when the world had their mixed opinions about Jannat, I felt that you were perfect in that. I remember I told Imran, I said, because normally हमारी जो भट्ट साहब की फिल्में होती हैं ना उसमें हीरोइन को अच्छी तरह दिखाया नहीं जाता हर बार. But I remember you were, for me, you will always be the Jannat girl. You know, and you were, I feel you never got your due. I know there were films that came thereafter. I know that you've done a lot of work after that. But that due, do you think that it's remained elusive for a long time? Well, I don't know. I think it's something that we don't decide. I never, when I signed my first film, when I did Jannat, I didn't even understand really the importance of a hit or or a flop. So when I still remember when we were in Calcutta and I was with Amy and we were getting calls constantly saying that it's houseful everywhere and people are really enjoying it and all. I didn't even know if I should have enjoyed that moment, and then finally Amy told me, you know what, the film is a hit. Now just enjoy. During the IPL, huh? That During also. the IPL, You all yes. beat cricket, जो India में कोई नहीं कर पाता. Yeah. So I think that also wasn't planned. That also wasn't expected. So I guess I'm just doing what I'm supposed to do, and it's eventually up to the audience and up to God how the audience takes it. And So in all this time of moving ahead, I still always notice one thing. There are very few in the industry that are better dressed than you, better turned out than you. You know, you're like this fashionista. I know a lot of people have other fashion icons of theirs, but you've always been so perfect and particular about that. From the time I've known you, and I've known her for a very long time. Yes. So how have you always got it right? And you've been ahead of the curve, so as to say. I don't know. I really Google? Who's your best friend? Google or Nobody. fashion? I'm my own best friend. I just wear what I feel comfortable in. I just don't blindly copy what's going on in the world. So But I hate you. You know why I hate you? Why? Because you don't work out or do all I those kind do. of... You Not would- that much, but... yeah, maybe not that But much. लाइफ में तुम्हारा कभी फिगर चेंज नहीं हुआ है. कुछ भी खा लो, कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता. I eat a lot. But For that, I think I just have my mother to thank. I just got good genes from her. Otherwise, like if I was somebody who had the tendency to put on weight, I would have been a
Really fat. Because I love eating and I can't compromise on that. 14 साल से आपने मुझ में तो चेंज देख ही लिया है खाना खाते हुए. But anyway, the change in Ankit Tiwari is so much more to talk about. And like I said, he's living his Ashiki 2 song. You know, there's so much there, but he's pulling it off. So many people can go on stage and look unreal as a rocker. You know, it's very difficult to do. Lagta hai as if you can sing and you can do all that, especially when you sung the song yourself. I wouldn't say the first time in my mind I would have thought of this pair together, but they pulled it off in the music video as well. Today is a very great day when we can sit and talk about singles. 5 years back, I wouldn't even thought about people making singles. Now they're making videos and singles, and you must be happy, boss, because ये ज़माना वापस आ जाएगा. तुम्हारे फिल्मी गाने तो चलते ही जा रहे हैं. Exactly. But ये फील अलग रहती है. आई नो यू लाइक क्रिएटिंग. तुम एक तो बहुत कम ऐसे सिंगर्स हैं जो खुद बना पाते गाने और जो See, ये एक सबसे बड़ी कंफ्यूजन भी है और मुझे मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि फर्स्टली आई एम अ कंपोजर Yes. एंड बाद में मैं सिंगर हूँ. तो मुझे आई डोंट नो, शायद ऐसा मैं सिंगर से पॉपुलर हो गया तो वो कंपोजर मैं हूँ पीछे रह वो गया, किसी को पता नहीं होता है. तो जितने मोस्टली मेरे गाने इनफैक्ट सुन रहा है तू गलियाँ तू है कि नहीं खतरा एंड ऑल, वो सब मैंने ही कंपोज किया हुआ है. सो No, I think now that they do know about that. बहुत but अभी भी कंफ्यूजन. पर तुम्हारे 2 गानों की वजह से तुम्हारा नाम बहुत ज्यादा बड़ा बन गया था. So I guess वो होता है, वो बॉलीवुड में हो जाता है जैसे एक फिल्म की तरह हो जाता है. लोग बाकी सारी क्वालिटीज आपकी भूल सकते हैं, बट तुम्हारे कॉम्पोजिशन में दर्द बड़ा मेरे को ऑलवेज महसूस होता है यार. क्यों लाइफ में बहुत टेंशन. नहीं, मैं इतना भी मतलब दुखी प्राणी नहीं हूँ. मैं खुश रहता हूँ और म्यूजिक अगर बहुत आप दुखी हो तो म्यूजिक कैसे कर पाओगे. तो आई थिंक आपको अंदर से खुश रहना बहुत ज़रूरी है और अच्छा माहौल, अच्छा एटमॉस्फेयर बहुत ज़रूरी है. बॉलीवुड में रह के अपनी पहचान रखना, क्योंकि यूनिक आइडेंटिटी बहुत मुश्किल है. अ लॉट ऑफ द टाइम्स आप जो लोग चाहते हैं वो करने लग जाते हैं. एक्टर्स के साथ भी होता है, इट हैपेंस विद एवरीवन, बट यू मैनेज टू मेंटेन योर ओन आइडेंटिटी. ये कैसे? सबसे पहले मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं गाऊंगा, प्लेबैक करूंगा या सिंगिंग करूंगा. इसका क्रेडिट जाता है 2 लोगों को. सबसे पहले दिग्मांशु धुलिया को और दूसरा भट्ट साहब को. क्योंकि मुझे याद है मैं जब भट्ट साहब को अपना एक गाना सुना रहा था तो वो अपना कैमरा ऐसे लाए मेरे सामने, एकदम क्लोज आ गए और मेरी एंड ही इज वेरी इंटिमिडेटिंग. ऐसे भट्ट साहब सडनली आए थे. हाँ, अचानक से आए थे एकदम, जैसे ऐसे गाना आप गा रहे हो तो ऐसे आए थे सामने. तो मैं गाते गाते सुन रहा मतलब मैं गा रहा था. तो उन्होंने मेरी पिक क्लिक की और अच्छा मुझे लगा था कि शायद वो पहली याद रखते हैं अपने पास कि अंकित ने पहली बार विशेष फिल्म में काम किया. तो जब मैंने अपना प्रेजेंटेशन खत्म किया तो पता चला कि उन्होंने ट्वीट कर दिया है. And he does that also. Yeah. Look at what's happening behind the scenes. Here's the photograph. तो उन्होंने बोला कि मोहित से बोला कि मुझे अभी भी याद है वो कि मोहित तेरी पूरी एल्बम तो कंप्लीट हो चुकी है आशिकी 2, क्योंकि ये गाना सबसे आखिरी में लगा था, है ना. तेरी फिल्म कंप्लीट हो चुकी है आशिकी 2, एक गाना जो तुझे मिला है ना, ये गाना तभी रहेगा फिल्म में जब ये खुद गाएगा, वरना नहीं रहेगा. तो मतलब वो चाहते थे कि मैं गाऊं और मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी क्योंकि मैंने सच में नहीं सोचा था. और मैं और मोहित तो सिंगर डिसाइड कर रहे थे कि कौन गाएगा. तो ये हुआ कि पूरी एल्बम अरिजीत ने गाई हुई है, किसी और को लेना चाहिए कि नहीं पूरी एल्बम अरिजीत ने गाई हुई थी, उस आदित्य की आवाज़ अरिजीत की रखते हैं. मैंने कहा यार डन, सुपर. फिर बाद में जब पता चला कि ये गाना के का है, पिया है ना. और देन एक हुआ कि एक अंकित का एक गाना है वो खुद गा रहा है. तो वहाँ से ये आपको पता है कि आपने सबके लिए बहुत मुश्किलें खड़ी कर दी थी क्योंकि आदित्य को ये गाना याद नहीं हो रहा था. और पता है चलो मैं एक स्टोरी बता देता हूँ. दोनों ही तीनों ही एक्चुअली भटके हैं. एक हीरोइन, एक आप कह नहीं सकते कि व्हाट काइंड ऑफ एक्टर्स है, बट हाँ. और आदित्य रॉय कपूर को ये गाना याद ही नहीं हो रहा था. फिर मोहित ने बोला प्लीज लिसन टू दिस सॉन्ग, प्लीज कीप हिज फोटोग्राफ इन फ्रंट ऑफ यू एंड लर्न दिस सॉन्ग. It took him 4 days to learn it. Eventually he managed to get the emotion right. And like I said, it changed everyone's life. So that is also amazing. You're both from the same camp. Yeah. Did you all share stories of Bhatt Sahab? कभी मतलब थोड़ी बहुत बात हुई स्टोरीज शायद. तो हाँ, he did tell me, but क्योंकि मैं बताता हूँ, मैंने सोनल को बहुत बारी क्योंकि जितनी भी मुलाकातें हुई मैंने हमेशा बोला कि मैं तुमसे इंस्पायर होकर मैंने गाने बनाए. अरे इनको देखकर तो कोई भी इंस्पायर हो जाए यार. हाँ, मतलब मैं कभी मिला नहीं था इनसे. तो इसको भी समझ नहीं आया. जन्नत. मैंने कहा वो तुम्हारा याद है वो जन्नत वाला सीन जब हाशमी उतरता और कार रुकी होती है, फिर नीज पे बैठ के तुम्हें प्रपोज करता है. वो पूरा गाना जो है ना जरा सी, मैं प्रीतम दा इतना अच्छा गाना बनाया, सैयद कादरी साहब ने लिखा है. और मैं उसका वीडियो लगाता था और ऑडियो म्यूट कर देता था और मैं उसको देखता था. तो उस मतलब वीडियो से बहुत खूबसूरत गाने निकले जिसमें से
तो हर वीडियो में सोनल ही थी, मतलब वो वीडियो में तो सोनल ही वो थी। वीडियो में सोनल तो थी। बहुत सारे गाने सोनल की वजह से निकले हैं। यू शुड गिव हर रॉयल्टीज। पहले मुझे मिल जाए। सर आजकल तो सुनने में सबको रॉयल्टी मिल रहे हैं, but you know, so this is an amazing story. So did you know that he was obsessed with you? Let's put it this way. He wasn't obsessed with me. He just told me कि ऐसा कुछ हुआ था, तो it was very flattering, and I think यार पूरा credit KD को जाता है. I think he did it so beautifully. Just छोटे moments थे. Even I remember when he narrated the film to me. उससे पहले मैंने script पढ़ी थी. I loved the script, but जो मेरा debut था वो मोहित सूरी के साथ होने वाला था. And then something happened, and Mukesh ji called me and he said कि you know we're making this another film called Jannat. Why don't you come and meet the director? But I obviously wanted कि हाँ ना, अच्छा, Kunal was Mohit's assistant by the way. Yes. So it was still part of the same family. Let's put it this Yes. way. And then when I heard him narrate the film, और उसने छोटे जो moments होते हैं जो एक आप narration में ही बता सकते हैं, जो आप script में नहीं लिख सकते. That's when I was like, oh my God, he's going to make it so beautiful. So like I said, you know, this career formation, you see, the older to the middle to the newer generation as far as the Bhatt camp is concerned. सबसे पहले तो सर 2007 में हमने start किया था, फिर वो flop हो गई थी. But it does change a lot of perspectives also, you know. And like he said, and like she also said, you know, so much inspiration can come out of just a few frames. And I think the Bhatt camp was responsible in creating music as another character in a film. It was never a character in a film, but after a point of time, it did become. No matter how the film looked, you know, and not every film can look like a Yash Raj film or a Karan Johar film, but music became such a strong point, so it made a lot of money. This idea, once again, तुम बनाते रहते हो अपना music. Yes, yes. क्या ये कोई फिल्म का गाना था और तुमने सोचा कि नहीं? नहीं, क्या था ये आइडिया बहुत पहले से था मेरे पास, और ये लव स्टोरी नहीं थी जैसे दिखाया गया। सोनल है मेरे साथ इसमें, उसमें कोई लड़की नहीं थी पहले गाने में. तो जब सिंगल की बात चल रही थी तो भूषण जी से यू नो मुलाकात हुई और उन्होंने बोला कि अंकित एक सिंगल करना है. मैंने कहा मुझे भी करना है. तो बहुत ही ईजी था उनका कहना और मेरा मानना कि एक रोमांटिक गाना बनाते हैं, क्योंकि Obviously. मेरा नाम आता है या मेरे गाने सुनते हैं तो वही जॉनर आता है. इनफैक्ट हमने एक गाना बनाया जो कि बहुत ही प्यारा सा रोमांस से भरा हुआ गाना था. सो वो सुनाया तो अच्छा लगा सबको कि चलो ये अच्छा है, इस पे काम करते हैं. फिर एक शायद मैं चला गया था बाहर और भूषण जी भी बिजी हो गए थे. वो एक गैप आ गया. गैप आने के बाद फिर मुलाकात शुरू हुई. तो आई थिंक सोनल से मीटिंग हो चुकी थी पहले गाने को लेकर, है ना? या तो So you were always in the picture. I was always. सो ये हुआ कि अंकित भूषण जी का भी आइडिया था कि और अच्छा कोई गाना है. मतलब वो वाला पसंद नहीं आया. उनको अच्छा लगा था, Beautiful was a song. nice song. बहुत अच्छा. उनको अच्छा लगा. कहते हैं अंकित कुछ और अच्छा गाना है. अब अच्छा क्या हो सकता है मुझे नहीं पता, मतलब एक गाना होता है उसमें अच्छा बुरा. मैंने कहा हाँ मतलब वी कैन ट्राई ऑफ कोर्स. कहते कुछ और देखो ना यार, ये तो है हमारे पास, मतलब वी आर ऑन, हम लोग शूट पे जा सकते हैं, कुछ और देखो. तो फिर मैं गया. फिर मैंने अपने भाई से बोला, मैंने कहा यार अच्छा मेरे दिमाग में रह गया भूषण जी ने क्यों बोला कोई और अच्छा गाना है, गाने में कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं. तो भाई ने कहा कि यार जॉनर छोड़ना, कुछ और ट्राई करना, कोई सिचुएशन तो है नहीं तेरे पास Correct. कि डायरेक्टर ने कुछ बोल Like के a रखा film, है, yeah, हाँ. खुला है, कुछ भी कर रहे हैं ना, स्टोरी बना ली जाएगी. तो फिर एक मेरे पास पड़ा था, टेढ़ी बातों का सीधा जवाब है, मैं बदतमीज हूँ, मेरी आदत खराब है. तो मेरे भाई ने याद दिलाया, कहता वो तेरा पड़ा हुआ है ना, उसको बनाते ना. मैंने कहा बदतमीज पागल हो, नहीं हो पाएगा. कहते तू एक डेमो बना, भूषण जी को सुना. मैंने एक डेमो बनाया जिसके लिरिक्स कुछ और थे, हुक लाइन सेम थी. तो मैं लेके गया, भूषण जी को बहुत पसंद आया. कहते हैं अंकित इस पे करते हैं, ये अच्छा है, यू नो ये बदतमीज वाला जो एंगल अच्छा है, लेकिन लव स्टोरी कहाँ है? मैंने कहा लव स्टोरी तो नहीं सर है. हमारी हर स्टोरी में एक लेडी तो होनी चाहिए सर. मैंने कहा लव स्टोरी नहीं है सर. कहते नहीं इसमें लव स्टोरी लो. मैंने कहा बदतमीज में लव स्टोरी कैसे लाऊं? नहीं ला सकता मैं. कहते नहीं यार वो कोशिश करना एक बार बैठ, अब डायरेक्टर से पूछो जो तुम्हारा जो कर रहा है. मैंने कहा सिद्धांत ऑफ कोर्स, अगेन विशेष फिल्म. जो भी आशिकी 2 में असिस्टेंट था मोहित का. या सो मैंने कहा सिद्धांत ऐसी सी बात है, ये गाना अच्छा उस वक्त तक सबको अच्छा लग गया था गाना. मैंने कहा बॉस इसमें लव स्टोरी कैसे लाएं? तो समझ नहीं आया क्योंकि हुकलाइन ऐसी है, मैं बदतमीज हूँ, मेरी आदत खराब, आई लव यू, वो समझ ही नहीं आ रहा था किसी को. तो ये हुआ कि यू नो
दिल टूटा हुआ कोई आशिक ऐसा कुछ हो तो कुछ हो सकता है। तो फिर एक लाइन लिखी गई, उस पर फिर हमारे जो राइटर हैं मनोज मुंतशिर, उनको तो मैं दिल से थैंक्स बोलना चाहूँगा, क्योंकि बहुत टफ था लिखना इस सिचुएशन पे कि वो प्यार भी आ जाए और वो हुक लाइन भी निभ जाए, और उसके बाद अंतरा जब मैंने ट्यून बनाई थी, बिलीव भी मैंने, वो ऐसे बैठे थे, मैंने कहा था अंतरा जो थे डा 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 डा। अभी मीटर समझ नहीं आया, कहते क्या कर रहा है, कोई अच्छा मीटर देना। मैंने कहा एटीट्यूड है यार, वो पागल है, वो ऐसे ही गाएगा। तो तुम ही रोज कहते थे तुम ही मुझसे प्यार करोगे, ऐसा कोई और न कर पाएगा। मतलब एक्चुअली उनके लिए मैं जरूर उनको not enough credit is given to the writers of songs. Trust me. यार धुनें तो बहुत सारी बन जाती हैं, हम सारे अपने दिमाग में सिंगर होते हैं, गिटारिस्ट होते हैं, लेकिन जो शब्द निकलते हैं ना, Exactly. very difficult. और बहुत अच्छा जेल कर, ये नहीं कि आप कुछ भी, कभी कभी हम गलत वर्ड यूज़ करके उसका मतलब बदल जाता है, कभी मात्रा कुछ और होती है, उसको बढ़ा के गाना पड़ता है, वैसा नहीं, एकदम एग्जैक्टली लिखा है उन्होंने, और वो आई थिंक इज डूइंग वेरी गुड। और And then you came back into the fray, heard this, and suddenly said, okay, from a love story, it's becoming a sad song. Come revenge, come No, I fight knew, back. I kind of knew throughout. पहले जो song था, that was a very romantic song, beautiful song again. I'm sure कहीं ना कहीं हम आगे जरूर सुनेंगे. Then I heard the बदतमीज का जो पहला, जिसमें कहीं लड़की का कुछ, हाँ, जो first draft था, हाँ, जहाँ पे इसमें भी वही मैंने सुना भी था। imagine किया कि ये how. Where's the girl? मैं But then I heard the final one and I loved it, and I. And it's a full film level shot. It's not like a video. Yeah, it's a proper. Yeah, well, credit of course to Siddhant. He's done it so beautifully, and it really. Everyone has told me that what you're saying, that it really looks like a film. Yeah. बहुत सारे लोग confuse कर रहे हैं कि आपकी movie कब आ रही है, आपकी movie कब आ रही मैं जब ऑफिस से निकल रहा था, अरे भाई अंकित की पिक्चर आ रही है। है। Yeah, अभी मुझे फिर मैं भी डबल, मैंने कहा यार क्या पता यार मुझसे ये कोई ट्रेलर तो नहीं है पिक्चर के लिए, बिकॉज सिद्धांत भी था, मैंने कहा यार ये बिकॉज आई हर्ड दैट ही वाज मेकिंग राइटिंग अ फिल्म, मैंने कहा कहीं ये पिक्चर तो नहीं बन रही। मेरे साथ एक्चुअली इसको एक्सटेंडेड वर्जन बनाया जा सकता था। मतलब ऑलराइट, सो मुझे अभी तक बोलते हैं कि यार मुझे जतिन जी मिल गए, जतिन ललित जी, कहते हैं अरे अंकित बधाई हो यार, तुम तो हीरो बन गए। नहीं सर, ये बट इस यार वीडियो में भी तो हीरो होता है। हाँ, लेकिन फिल्म नहीं है ना, मतलब वो एक्चुअली मुझे जहाँ तक लगा, और सोनल ने मेरी बहुत हेल्प की है शूट में, क्योंकि कहीं कहीं मैं समझ नहीं पा रहा था कि कैसे करना है, और मैंने स्पेशली सिद्धांत को बोला था, मैंने कहा चिल्लाया ना अगर तो मैं भाग जाऊंगा, मुझे सब प्यार से बात करेंगे, मुझे सब अच्छे से बात करेंगे। Like we all were surprised. मुझे चढ़ाया लिटरली, आपके बहुत अच्छा कर रहे हो एंड ऑल। He was really good यार। मैं जब कई बार इंटरव्यू में बैठता हूँ ना, मेरे कैमरामैन पीछे बोलते हैं भाई थोड़ा साइकिल पंप के साथ बढ़ा देना। ऐसा ही हुआ मेरे साथ। सो सिद्धांत ने एक्चुअली 5 से 6 दिन मुझे अकेले रूम में बंद करके काफ़ी कुछ बताया, गुस्सा कैसे करते हैं और क्या। नहीं, बिकॉज वो एंगस्ट आ रहा है, और बदतमीज जैसे तुम बोल रहे हो, मेरे को मजा आ गया क्योंकि मेरे को बदतमीज दिल की याद आ गई। वहां पे भी ऐसी था, वो फ्लेवर, या तेरी आवाज में वो फ्लेवर है, इवन इफ देयर इज दैट रेंज एंड द पावर इन द वॉइस, यू मस्ट हैव मेड इट स्लाइटली मोर अग्रेसिव इन अ लाइन ऑफ सिंगिंग। एग्जैक्टली, मतलब मैंने ये गाया था प्रोडक्शन के दौरान, जब गाना बन रहा था, तो मैं पता नहीं किस मूड पे मैंने गा दिया था गाना, मैंने रीडअप नहीं किया गाने को। अच्छा, क्योंकि मैं रीडअप कर रहा था, मैं वो गा ही नहीं पा रहा था, वो गुस्सा, वो आई डोंट नो क्या था, वो एक बार में डब करके खत्म, मैंने रीडअप किया ही नहीं है गाने। प्रोडक्शन ने रियली बहुत तंग किया होगा तेरे को उस दिन। हाँ, मतलब सिद्धांत बेचारा बदतमीजियां यहाँ पे, बदतमीजियां यहाँ पे आ रही है। सो But it's worked out really well. Are you happy with this kind of little bits and pieces in between which keep you busy also? I love it, yeah. I love it, and especially when the song is so nice, and the praises that we're getting, and everyone's loving it. It's great. It's fantastic. I'm really happy to see you back in action also like this. I think sometimes people want to show their work off late, what they've done. This is beautiful because A, this will get more airtime than a film. B, it'll get more playtime, also your time, and everyone will start to think, like I said, if you don't tell someone, they'll think it's a film anyway. yeah, of course. So congratulations on becoming a hero, sir. And on another release, Thank you but it's just the truth. It doesn't really matter. Like I said, it's a new avatar. I say he's made an Ashiki 3 before an Ashiki 3. Similar look भी है. बाकी स्टारकास्ट भी सेम ही है. मतलब वो भी जैकेट ऐसे पहन रहा है. And let me tell you another thing. His director of this film is there for one shot in Sunrai also as the person who actually comes to open the door. So this is another coincidence. Oh, is that Siddharth? Yes. Really? Wearing the jacket at the back.
but of course he's not shown his face. Oh, okay. So now see, lots of it is बोलूंगा actually come सिद्धांत together. को ऐसा है। So this is the Ashiki 3 unofficial, which is actually released. But Badtameez it is, and you know I'm looking forward to seeing you all take this a little step further. You never know. Maybe Ankit will get launched, and it'll be the song, the film that will change everyone's lives once again. But I hope I see you again soon, darling. More releases this year? Yes. I'm doing a film. I'm doing a film called Jack and Dil. It's Jack with- and Dil. No, yeah, Jack I and like Dil, it. not Jack and Jill. And are you singing in it? She's a very No, good no, singer. I'm not singing it. But I'm why you acting. must? आजकल का ये trend है, अंकित as a music composer भी ये बोल रहे हैं, आपको गाना ही चाहिए. Exactly. कभी गाऊंगी. Maybe we'll pressurize her, make a special song. We'll all come in as special appearance. So the next time, take care and bye bye. I'll see you soon. Thanks.